سیلابی پانی میں گھرے ننھے بچے کی اذان نے دل دہلا دیے۔ یا اللہ رحم، یا اللہ رحم۔ اجڑے علاقے میں سب کچھ تباہ ہو چکا، لوگوں کے پاس کچھ بھی نہ بچا۔ مدد کے لیے چیختے پکارتے سیلاب متاثرین کی ویڈیو سے درد دل رکھنے والے چیخ اٹھے۔ عوام اپنی مدد آپ کے تحت متاثرین کی مدد کو پہنچنے لگے۔ سیلاب سے بچ جانے والوں کو بھوک نے آ گھیرا، ہر سو پانی مگر پینے کی بوند تک نہیں۔ ماں باپ بچوں کو تسلیاں کھلانے پر مجبور۔ سیلاب سے سندھ، بلوچستان، کے پی اور جنوبی پنجاب اجڑ گیا۔ قومی ایمرجنسی نافذ، متاثرین کی امداد کے لیے اپیلیں۔ بارشوں سے ہلاکتوں کی تعداد 913 سے بڑھ گئی۔ سینکڑوں دیہات صفائے ہستی سے مٹ چکے، ہزاروں مکانات تنکوں کی طرح بہہ گئے۔ بھوکے پیاسے متاثرین راشن ٹرکوں پر ٹوٹ پڑے، مال مویشی اور فصلیں تباہ۔ سیاحتی مقامات کا بھی برا حال ہو گیا، متعدد پل اور رابطہ سڑکیں بہنے سے زمینی رابطے کٹ گئے۔ فصلیں تباہ ہونے سے غذائی قلت کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ تقریباً 3 کروڑ افراد بے گھر ہو چکے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں اور تباہی کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ موٹر وے پولیس کا شہریوں کو سفر سے پہلے ہیلپ لائن پر کال کرنے کا مشورہ۔ نقصان اصل میں کتنا ہوا، پانی اترنے کے بعد ہی تخمینہ لگے گا۔ پورا کا پورا گھر ہمارا تباہ ہو چکا ہے، ہمارے بچے در پدر ہو رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ ہمارے بچے بیمار پڑے ہیں اور ابھی تک حکومت ہمارے پاس نہیں آئی، نہیں کھانے کو صبح سے کچھ بھی دیا ہے۔ گھر بار بچا نہ کاروبار، فصلیں رہیں نہ راستے۔ سندھ کے کونے کونے میں تباہی، سیلاب نے شہر دریا بنا دیے، قصبے اور دیہات صفائے ہستی سے مٹا دیے۔ اب تک 300 افراد لقمہ اجل بن چکے۔ خیرپور میں 4 نہروں کے بند ٹوٹ گئے، سینکڑوں دیہات ملیا میٹ۔ منہ زور پانی کے سامنے ہر کوئی بے بس، مکانوں میں رہنے والے سڑکوں پر دربدر۔ سیون میں مزید سینکڑوں مکانات منہدم۔ ٹھٹھا، بدین، نواب شاہ اور لاڑکانہ میں کئی روز بعد بھی پانی نہ نکل سکا، مکانات تاحال پانی میں ڈوبے پڑے۔ سکھر میں سیوریج سسٹم تباہ و برباد، ہر سو گندا پانی جمع۔ بدین میں خاتون کی میت پانی سے لے جانے کی ویڈیو وائرل، سین نالے کی کمزور پشتے اور پل پانی میں ڈوب گئے۔ ٹھٹھا کے اسکول بھی کھنڈرات بن چکے۔ حیدرآباد میں نکاسی آب کا کام اب تک شروع نہ ہو سکا، گلی اور محلوں میں کئی فٹ پانی تاحال موجود، کاروبار اور مارکیٹیں اب بھی بند۔ محکمہ موسمیات کی رات سے مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ ہر طرف تباہی کے مناظر، سڑکیں اور شہر کھنڈر بن گئے۔ بلوچستان کا ملک سے زمینی رابطہ کٹ گیا۔ خوفناک سیلاب کا غضب ٹھنڈا نہ ہوا، ایک اور سسٹم داخل۔ مختلف شہروں میں مسلسل 22 گھنٹے سے موسلادھار بارش، حادثات مزید 4 زندگیاں نگل گئے۔ مجموعی اموات کی تعداد 234 تک جا پہنچی۔ مواصلاتی نظام تباہ، بجلی بھی کوئی نہیں۔ کھانے پینے کے بعد پیٹرول کی قلت نے بھی سر اٹھا لیا، کوئٹہ دوبارہ ڈوب گیا۔ مختلف علاقے زیریاب، کراچی اور پنجاب جانے والی ٹرین سروس 5ویں روز بھی معطل۔ مکران، قلات، کوہلو اور سبی میں سینکڑوں گھر تباہ۔ گوادر، نصیر آباد، سبی، لسبیلا اور ہرنائی میں بھی دل دہلا دینے والے مناظر۔ چمن بارڈر بھی ڈوب گیا، پشین سمیت دیگر علاقوں میں فصلیں اور پھلوں کے باغات ختم ہو گئے۔ تحصیل کاہان کے مکین محصور ہو کر رہ گئے۔ قلعہ عبداللہ، توبہ چکزئی اور گلستان میں لوگوں کی نقل مکانی۔ اس ٹائم پر وہ حکومت کا کوئی آدمی نہیں آیا۔ ہمارا جو دکان ہے سوات کارپیٹ منگورا میں واقع ہے لنڈی قصبے میں، اس کا بہت A to Z کا نقصان ہو۔ لوگ پھنس گئے، رابطے کٹ گئے۔ خیبر پختونخوا پھر مونسون بادلوں کے نشانے پر، موسلادھار بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے متعدد گاؤں سیلابی ریلے کی زد میں، سگو پل ٹوٹ جانے سے سڑک بند۔ ٹانک روڈ میں بھی ہر سو پانی ہی پانی، علاقہ مکین پھنس گئے۔ سوات میں 3 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ سوات ایکسپریس وے جزوی طور پر بند۔ مینگورا میں گھروں اور دکانوں کو شدید نقصان۔ محلہ حمید آباد کو لکی شہر سے ملانے والا پل بہہ گیا۔ دال ملز ایریا سے ایک شخص کی لاش ملی۔ ارسلہ پل بہنے سے کے پی کا پنجاب سے رابطہ کٹ گیا۔ دریائے پنجگور میں اونچے درجے کا سیلاب، رابطہ سڑک بہہ گئی۔ گندگار میں مکانوں کی چھتیں گر گئی۔ ٹھاٹھے مارتا منہ زور پانی، جنوبی پنجاب کو ملیا میٹ کر گیا۔
राजनपुर, डीजी खान, रुझान, तोसा उजड़ कर रह गया। रैले रास्ते में आई, हर चीज बहा ले गए। सैकड़ों देहात सफाई हस्ती से मिट चुके। तौसा में मकान की छत गिरने से बची जान बहक। हादसात में अमवात की मजमूई तादाद 20 तक पहुंच गई। रहीम यार खान में भी मजीद 2 अफराद जान से गए। मुतासरा इलाकों की गलियां, मोहल्ले और मकानात में कई फुट पानी मौजूद। स्कूल और अस्पताल भी सैलाब की नजर। कारोबार मुकम्मल तबाह। खेती करने वालों का भी सब कुछ लुट गया। मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सयाहत का प्रोग्राम है तो फिलहाल रोक दें। सयाहती मकामात जाने से गुरेज करें। सवात में शदीद सैलाब के बाद इंतहाई खराब सूरत हाल। चकदरा के मकाम से सवात दाखिल होने का रास्ता बंद। कालाम रोड, असरीत और पशमाल के मकाम से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। सयाहों के फंसने का खदशा। कागान और मुल्हिका वादियों में भी मूसलाधार बारिश वक्फे वक्फे से जारी। नदी नालों में तुग़यानी। दरिया कुनहार में सैलाबी सूरत हाल। जगह जगह से सड़क बंद। मरी, नतिया गली और आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश, लैंडस्लाइडिंग। कई मकामात से सड़क बंद। दरिया नीलम में तुग़यानी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिज़र में भी तबाही। अशकोमन में सैलाबी रैला आबादी में दाखिल। ज़ेर तामीर पावर प्रोजेक्ट मुकम्मल तबाह। अपर कोहिस्तान में भी तेज़ बारिश। शराय कुराकुरम कई मकामात से बंद। वादी नलतर में सैलाबी रैला। भर की तरह कंदकोट में भी जो बहालिया बारिशों की वजह से जो बड़ी तबाही हुई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेवन की शाहबाज कॉलोनी में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तालका अस्पताल काजी अहमद में। जिला सांगड़ में बारिशों ने तबाही मचा दी। जाफराबाद, नसीराबाद, सोबतपुर, डेरा अलियार, उस्ता मोहम्मद। राजनपुर में रोज कोई सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। इस वक्त मौजूद है तौसा की बस्ती मंगरोठा में। दीर में मानसून बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। स्वात के मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। एक्सप्रेस न्यूज सैलाब मुतासरीन की पुकार बन गया। पाकिस्तान के कोने कोने से आफतज़दा इलाकों की कवरेज। चप्पे चप्पे से मुतासरीन की मुश्किलात से लम्हा बा लम्हा आगाह किया। रिपोर्टर्स ने खतरनाक तरीन सूरत हाल में भी मुतासरीन की आवाज़ हुक्कामे बाला तक पहुँचाई। राशन मांगने वालों को डंडे और थप्पड़ मिले। सिंध के सैलाब मुतासरीन पर पुलिस वाले टूट पड़े। बेघर अफराद खैमों और राशन के लिए डीसी ऑफिस के सामने जमा हुए। एहतजाज किया तो पुलिस ने लाठी चार्ज शुरू कर दिया। बूढ़ी खातून का सर खोल दिया। डंडे मार मार कर भगा दिया। इंतजामिया आई, ना ही डीसी साहब। किसी ने बेघर मुतासरीन की आवाज़ ना सुनी। सैलाब से सब्जियों और फलों की किल्लत। सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब के बाद कराची में सब्जियां नापैद होना शुरू। कीमतों में 2 से 3 गुना इजाफा। किसी भी सब्जी की कीमत 200 रुपए से कम नहीं। मयार भी बेकार। 60 रुपए वाला प्याज 200 रुपए में बिकने लगा। टमाटर 240, पालक 300, तोरियां और भिंडियां 350 रुपए तक फरोख्त होने लगी। कोर कमांडर्स का सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद जारी रखने का आज़्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक शुरका को सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शुरका को गैर मामूली बारिशों के होने वाले नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। फोरम को बैरूनी और दाखिली सलामती की सूरत हाल पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सैलाबी सूरत हाल पर कौमी इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आज़म ने दौरा लंदन भी मंसूख कर दिया। शहबाज शरीफ का मुतासरीन के लिए फौरी 5 अरब रुपए जारी करने का ऐलान। जाम बहक अफराद के वरसा को 10 लाख फीकस दिए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की कौम से सैलाब मुतासरीन की मदद की अपील। कहा बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी एहतियात लाजमी दे। वज़ीर आज़म रिलीफ फंड भी कायम। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने कहा मुल्क का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जो बारिश से मुतासर न हुआ हो। सितंबर के वक्त में दोबारा ऐसी ही बारिशों की पेशगोई है। लोग बेवारो मददगार पड़े हैं। इमरान खान जलसे कर रहे हैं। सऊदी अरब मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। सऊदिया $1 अरब की सरमायाकारी भी करेगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और सऊदी हममनसब फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। बिलावल ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से आगाह किया।
गिरफ्तारी का डर, कप्तान पहुंच गए अदालत। इमरान खान ने दहशतगर्दी के मुकदमे में अबूरी जमानत करा ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान को 1 सितंबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। इमरान खान खुद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक 3 लोगों को धमकाया गया। उन तीनों में से कोई भी मुद्दई नहीं बना। मजिस्ट्रेट अली जावेद मुकदमे में मुद्दई हैं। शर्म करो और तुम पर केस करेंगे के अल्फाज को धमकी बना दिया गया। अदालत ने 1 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली। 1 सितंबर को फिर पेश होने का हुक्म। चेयरमैन PTI ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में भी अबूरी जमानत करवा ली। अदालत ने 7 सितंबर को पुलिस को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। होता है, सेक्सुअल अब्यूज होता है शहबाज गिल का, कंफर्म हो जाता है अदालत के अंदर कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, और मैं ये कहूँ कि मैं लीगल एक्शन लूंगा और उसके ऊपर मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस लग जाता है। खौफजदा हुए तहरीक इंसाफ की ताकत से वो फैलती जा रही है, बाई इलेक्शन जीते जा रहे हैं, जलसे पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने बड़े नहीं हुए। उस खौफ से ये टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए, अपनी जात को बचाने के लिए ये मुल्क का मजाक उड़ रहा है। इमरान खान को मुल्क बनाना रिपब्लिक लगने लगा, मुकदमात पर पारा चढ़ गया। चेयरमैन PTI ने कहा कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है। ये PTI की ताकत से खौफजदा हैं, इसलिए टेक्निकल नॉकआउट करना चाहते हैं। सारी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है। फैसले करने और कराने वालों को मुल्क का सोचना चाहिए। शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ लीगल एक्शन का कहूँ तो दहशतगर्दी का केस बना दिया जाता है। ये भी कहा कि अवाम को नाअहल टोले के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। वफाकी हुकूमत की तरजीहात अपने मुकदमे ख़त्म कराना है। सलाह मुतासिरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पंजाब और KP हुकूमतों को फौरी इमदाद की हिदायत करती है। शहबाज शरीफ को कोई भी पैसे देने को तैयार नहीं। इमरान खान कल सलाह मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा कराना कानून की तौहीन करार। तहरीक इंसाफ बरस पड़ी। असद उमर ने कहा इमरान खान ने सिर्फ एक्शन लेने का कहा, दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। फवाद चौधरी बोले इमरान खान पर मुकदमा करके मुल्क की बैनुल-अक़वामी सतह पर बदनामी हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को शहबाज गिल पर टॉर्चर का नोटिस देना चाहिए। पाकिस्तान की अदलिया को तशद्दुद में पार्टनर नजर नहीं आना चाहिए। 25 मई के किरदारों के खिलाफ जल्द सख्त एक्शन होगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा हुकूमत की बौखलाहट वाज़ेह नजर आ रही है। हुकूमत ने फस्तायत की नई मिसाल कायम की। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा कट गया। गुजरात में शहरी की दरख्वास्त पर FIR दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। FIR में कहा गया राना सनाउल्लाह ने तकरीर से अदलिया, चीफ सेक्रेटरी, सरकारी मुलाजमीन और अवाम को दहशत ज़दा किया। शहबाज गिल ने दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। उनके खिलाफ मुकदमा बदनीयती और सियासी बुग़्ज़ पर बनाया गया। बयान को तोड़ मड़ोड़ कर कुछ हिस्से FIR में शामिल किए गए। पर्चे में दर्ज दफात के तहत मुकदमा नहीं बनता। दरख्वास्त जमानत मंजूर की जाए। पुलिस अफसरान में 25 मई वाक़े से मुताल्लिक बेचैनी अपनी अपनी पड़ गई। CCP लाहौर ने 25 मई के वाक़े पर 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी की जानिब से तमाम अफसरान को तहरीरी बयान देने की हिदायत। सानिहा लसबेला के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। FIA साइबर क्राइम कराची ने एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। जिला गरबी के शहरी ने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट डाली थी। FIR के मुताबिक पोस्ट इदारे और सरबराह के खिलाफ मन घड़त और हर्जा सराई पर मबनी थी। मुलजिम को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। लोकल खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर-ए-आज़म ने डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स पर लगी पाबंदी उठा दी। कॉमनवेल्थ और इस्लामी यकजहती गेम्स में मुल्क का नाम रोशन करने वालों को असासा करार दिया। तकरीब में मेडल जीतने वालों को इनामात से नवाजा गया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने वज़ीर-ए-आज़म से इनामी रकम बढ़ाने का मुतालिबा किया। तकरीब में नू बट, जमान अनवर समेत तमाम मेडलिस्ट की शिरकत।
वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल की अजीब व गरीब मंतक कहते हैं ये कहना दुरुस्त नहीं, करप्शन की वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर सका। पाकिस्तानी कौम उतनी ही करप्ट है जितनी दुनिया की दूसरी अक़वाम। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही हुई, हज़ारों ख़ानदान बेयारो मददगार पड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी की फिर सैलाब मुतासरीन की मदद की अपील। कहा अवाम हुक्मरानों की बदआमालियों की वजह से आजमाइशों से दो चार हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें और उनके वज़रा मुतासरीन के पास नज़र नहीं आए। उधर जमात इस्लामी ने कराची में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप कायम कर दिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा सैलाबी सूरत हाल के बावजूद सियासी इंतकाम का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म ने अभी तक सिंध का दौरा नहीं किया, पूरा सिंध तबाही का शिकार है। लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि लोग बिल अदा कर सकें। गरीबों के ऊपर कभी हमारी हुकूमत ने कभी बोझ नहीं डाला। ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं ये कोई और पार्टियों के लोग नहीं हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हैं। इससे पहले कि हम भी अवाम के साथ खड़े हो जाएं, हम भी अवाम के साथ इन चीज़ों में शामिल हो जाएं, क्योंकि वो नून लीग है। अगर नून लीग ये एहतजाज करेगी तो हमारा फिर यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर रह जाएगा। फ्यूल एडजस्टमेंट और बेपनाह बिजली बिलों पर अपने भी पट पड़े। आबिद शरली का अपनी ही हुकूमत से शिकवा, वार्निंग दी अवाम को बिलों में रिलीफ ना मिला तो वो खुद एहतजाज में शामिल होंगे। ओपन मार्केट में डॉलर 229 रुपए से ऊपर, इंटरबैंक में भी 219 रुपए का हो गया। अमरीकी करेंसी इंटरबैंक में 1 रुपये 4 पैसे बढ़ी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 305 पॉइंट्स की कमी। वज़ीर आला पंजाब ने मुतासरीन की मदद के लिए इदारों को मुतहर्रिक कर दिया। मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के लिए फ्लड रिलीफ फंड कायम, 5 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान। परवेज़ इलाही की आवाम से मुतासरीन की भरपूर इमदाद की अपील।